Good morning, my dear students. Today we will do explanation of scene 1 of your play, that is Merchant of Venice. But before going to start, let me give you a brief introduction about William Shakespeare play and the whole story of whole drama of this Merchant of Venice. All right. The Merchant of Venice has been written by William Shakespeare. And you must have noticed that Shakespeare has carefully selected the names or the titles of his play, and basically his plays based upon historic and tragedies are named after central character of the play, named we can say Hamlet or King Lear. On the other hand, his comedies are named after, जो भी कॉमेडी डजंट मीन जिसमें फ़न है. कॉमेडी शेक्सपियर के अकॉर्डिंगली कॉमेडी प्ले वो होता है जिसकी एंडिंग अच्छी हो जाए प्ले की, और जो कॉमेडी करेक्टर्स होते थे उनके बेस्ड अपॉन वीक और पैसिव करेक्टर. Similar in the case with Merchant of Venice, it has been named after Antonio, the Merchant of Venice, a weak and a passive character. Now, if I want to wind up whole story in few lines, क्या होंगी वो लाइंस? फ्यू लाइंस में मैं आपको स्टोरी का पूरा क्रक्स बता देती हूँ कि स्टोरी क्या है. एंटोनियो एंड बसेनियो आर द फ्रेंड्स. वैसे इसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं इस प्ले में, बट यहाँ पर हम बात करें एक्चुअल में जो स्टोरी किसके ऊपर है. एंटोनियो एंड बसेनियो आर फ्रेंड्स. Bassanio one day asked Antonio that he needs some money because he want to go Belmonte, and but Antonio said that he don't have any money left with him. उसके पास पैसा नहीं है, but yes he can do one thing, that he can go to Shylock Moneylender, जिससे पैसा ले सकते हैं उधार. And they both went together, and then Shylock agree and for 3,000 ducats. Then but only on in one condition, that they have to give money back on stipulated period of time. मतलब एक फिक्स टाइम कर दिया दैट आपको पैसे वापस करने हैं, एंड इफ़ यू आर अनेबल टू गिव मनी बैक देन देयर इज़ वन कंडीशन that Shylock asked Antonio that he would be free to cut pound of flesh from Antonio's body. And you know what, time was so worst that वो टाइम आ गया कि उनसे पैसे वापस नहीं हुए. All right, so this was whole crux of the story, and we need to learn, we need to know about it. Then we have to go through every scene with line to line explanation. All right children, so here scene 1, Venice, a street. ये बताया गया कि कहाँ पर हो रहा है. इस टाइम का सीन स्ट्रीट में हो रहा है. Then enter Antonio, Salarino and Selenio. ये उनके 3 फ्रेंड्स थे यहाँ पर जिनकी बात चलेगी. एंटोनियो क्या कह रहा है? इन सूथ आई नो नॉट वाई आई एम सो सैड, इट वेरीज मी, यू से इट वेरीज यू. तो यहाँ पर एंटोनियो कह रहा है इन सूथ मतलब इन रियलिटी आई डोंट नो वाई आई एम सो सैड, मुझे नहीं पता, एंड इट वेरीज मी मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड आप कह रहे हो कि आपको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आप मतलब अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा है वो. बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट, व्हाट स्टफ इट इज मेड ऑफ, whereof it's born, am to learn, then and such went with sadness made me, that I have much I don't know myself. So bitter here he said that I don't know why I am so sad. उसको अपनी प्रॉब्लम ही नहीं पता कि वो क्यों दुखी है, एंड वो अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि मैं दुखी हूँ और आप कह रहे हो कि आप दुखी हैं. तो यहाँ पर जो शेक्सपियर है उन्होंने ये जो प्ले बनाया, उनके हर प्ले के पीछे एक मीनिंग होता था. इस प्ले के पीछे भी ही गेव अस अ लेसन, दैट जो एंटोनियो था वो वहाँ का एक बिग मर्चेंट था, बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस था जिसका. तो स्टिल ही इज़ नॉट हैप्पी. तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो पर्सन्स होते हैं जिनका बहुत बड़ा बिजनेस होता है, दैट डजंट मीन कि वो उनके पास सारी खुशियाँ होती हैं. हाँ वो सब कुछ जानते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को जानना भूल जाते हैं. तो इसीलिए जो फर्स्ट पैरा में क्या बोल रहे हैं एंटोनियो, वेंट विट मतलब बेवकूफ़, मतलब मैं इतना बेवकूफ़ लग रहा हूँ अपने आप को ही कि मुझे ही नहीं पता कि वाई आई एम सो सैड. ऑलराइट, नाउ सेलेरिनो क्या कह रहा है? योर माइंड इज टॉसिंग ऑन द ओशन, देयर वेयर Argosies with portly sail, like
signors and rich burghers on the flood, or as it were pageants of sea, do overpeers of petty terrificers, that courtesy to them do them revenge, as they fly by them with their woven wings. ये सारे पैरा की क्या एक्सप्लेनेशन है? सेलेरिनो उनको कह रहा है कि आप जो है दैट यू आर सैड बिकॉज योर होल कॉन्सेंट्रेशन इज़ इन द सी. आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन है जो इस टाइम सी में है, ओशन में है, वेयर योर शिप्स आर वर्किंग. एंड आपको फियर है दैट कि वहाँ पर उनको कुछ हो ना जाए, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. वो सेल कर रहे हैं, सेल समझ रहे हो, सेलिंग, जो शिप्स सेल करते हैं. एंड जो आपके शिप्स हैं वो इतने बड़े हैं और इतने अच्छे हैं कि जो बाकी लोगों के शिप्स सी में चलते हैं वो उनके सामने कुछ भी नहीं है. और जब आपके शिप्स निकलते हैं वो ऐसे लगता है कि कोई जेंटलमैन रोड से निकल रहा है, लाइक किंग, एंड अदर ऑल पर्सनस आर बोइंग देयर हेड डाउन. तो उसको वो मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं. तो सेम वे हम डिफरेंट लोगों के शिप्स भी आपके शिप को ऐसे ग्रैटिट्यूड देते हैं. ओके, देन उसके बाद सिलेनियो क्या कह रहा है? बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ द अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड. आई शुड स्टिल प्लकिंग द ग्रास टू नो वेयर सिट्स द विंड, पेयरिंग अ मैप्स फॉर पोर्ट एंड पायस द रोड, एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड. तो कह रहा है कि फॉर श्योर अगर मेरे पास ऐसा फॉर्चून होता, ऐसा वेंचर होता, इतना बड़ा बिजनेस होता, तो मैं क्या करता? प्लकिंग द ग्रास, मतलब कि मैं ग्रास को प्लक करके देखता कि किस साइड से जो विंड है किस साइड को जा रही है, ताकि मैं शिप्स को भी वैसे ही प्रोटेक्ट करता कि वो उस साइड जाएं या ना जाएं. और मैं पहले ही किसी भी डाउट में आने से पहले ही सारी चीज़ों को ख़त्म कर लेता. ऑलराइट, सो हेयर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन गिवन है बेटा आपको एक्ट 1 की. इन फैक्ट आई डू नॉट वाई एम सो सैड, दिस फीलिंग डिप्रेस्ड मी एंड यू से इट डिप्रेस यू. आई हैव येट टू फाइंड आउट वेयर फ्रॉम आई कॉन्ट्रैक्टेड इट, फाउंड इट, एंड व्हाट इज़ मेड ऑफ. मतलब किस चीज़ ने मुझे दुखी किया है, हाउ इट इज़ ओरिजिनेटेड. सैडनेस मेक मी सच अ डल मैन दैट आई कैन रिकग्नाइज माई सेल्फ विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी. Then Salarino क्या कह रहा है? Your mind is focused upon sea where your rich merchant ships have been swelling sail like rich aristocrats and merchants on waves, or like gorgeous spectacles of a sea do have behind smaller merchant ships who bow before them as a mark of respect as they speed past with their sail made of canvas. As I told you कि बाकी के ships उसको respect देते हैं. Then Celino क्या कह रहा है? Believe me sir, if I had such business venture in my hand, much of my attention would be on my transactions overseas. I would always be pulling and throwing up the grass to know direction of wind, looking curiously into map to study seaport, channel my every object that might suggest misfortune to the business would definitely make me sad. तो मेरा बिजनेस ऐसा होता तो मैं भी, नेचुरल है, मुझे कोई चीज़ बता देती कि यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है तो मैं भी सैड हो जाता. तो दिस वॉज होल अबाउट सीन 1. एक बार के लिए बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. आप इसको पढ़िए दोबारा से, एंड देन विद दिस एक्सप्लेनेशन I am going to send you one video from YouTube also in Hindi, so that you will get much more clear idea about this play. All right, and we will do next explanation very soon. Thank you.